Hello students, welcome to chapter number 4, Chemical Kinetics. Very easy chapter, very easy. In last lecture we have studied about different types of rate expression. तीन type के नाम थे. What is rate law? What is rate expression? What is differential rate equation? Okay. Now today our next question is write general equation of reaction and explain what is order of the reaction and which is its value. Order of reaction क्या है और उसकी value क्या हो सकती है. Okay. So now let us see the answer. Students, general reaction हम 11th science से ले रहे हैं. पता होगा आपको कि A mole of small a mole of capital A combines with small b mole of capital B, it gives small c mole of capital C plus small d mole of capital D. Understood? Okay. Suppose ये ordinary कोई reaction है और अगर उसका differential rate expression और rate लिखना है तो हम सिंपली लिख सकते हैं rate is equal to minus dr by dt is equal to k proportionality constant or rate constant into a raised to x into b raised to y, where the value of x and y are determined experimentally, which are same or not to a and b. x और y की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं जो a और b जितनी हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती. ओके. Where x and y indicate how sensitive the rate is to the change in concentration of A and B. X और Y से पता चलता है कि how sensitively rate of reaction is present in the reaction. Okay. सबसे पहली बात, इस पूरे इक्वेशन में आप देख सकते हो पावर है x and y. तो हम लिख सकते हैं x represent the order with respect to the reactant A, x raised to a raised to x है ना, तो लिख सकते हैं x represent the order of reaction with respect to A, y represent the order of reaction with respect to reactant B. Okay. और अगर दोनों एक्सपोनेंट्स का टोटल करें तो बनेगा x plus y, which is called overall order of the reaction. अगर आपको इस फॉर्मूला से ऐसा पूछा जाए कि x क्या है तो हम कह सकते हैं रिएक्टेंट A के हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, y क्या है रिएक्टेंट B के हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और x plus y क्या है दैट इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? सो द सम ऑफ पावर्स of the concentration of the reactant in the rate law expression is called the order of reaction. Okay. The sum of powers of the concentration of reactant in the rate law expression is called the order of the differential rate equation. में concentration of reagent term की जो powers होती है उनका total, उसे order of reaction कहा जाता है. Order of a reaction can be 0, 1, 2, 3 and even a fraction. बराबर, वो इंटीजर नॉन इंटीजर दोनों हो सकता है बट नेगेटिव नहीं हो सकता. These values are determined by experimentally. ये सब एक्सपेरिमेंट करके ही डिटरमाइन किया जा सकता है. तो बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो लिख सकते हो द सम ऑफ पावर्स of the concentration of the reactant in rate law expression is known as order of the reaction. Okay. चलो next question है students, write about elementary and complex reaction. elementary और complex reaction के बारे में explain कीजिए. Okay. बच्चों, दो टाइप की मेन रिएक्शंस होती है.
A balanced chemical equation never gives a true picture of how a reaction takes place. अब कोई भी रिएक्शन को देखते हो तो उस सिंगल स्टेप में या उस एक्सप्रेशन में आप समझ नहीं पाते कि वो रिएक्शन कैसी है, बराबर। लेकिन उसको समझना हो तो उसके मैकेनिज्म को स्टडी करना पड़ता है। और अगर कोई भी रिएक्शन के मैकेनिज्म को स्टडी करें तो बेसिकली दो टाइप्स के रिएक्शन हम समझ सकते हैं। फर्स्ट है एलिमेंट्री प्रोसेस एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो मैं ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूं। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन. The reactions taking place in a single step is called elementary reaction, and the order of reaction in elementary process is equal to molecularity. Order of reaction, okay, order of reaction in elementary process is equal to their molecularity. बराबर, ये मैं आपको समझा चुका हूं। जैसे H2 plus I2 it gives 2HI था, तो H2 का 1 मोलेक्यूल I2 का 1 मोलेक्यूल कंबाइन होके 2HI बनाता है, और वो एक ही स्टेप में होती है, मतलब एलिमेंट्री प्रोसेस है। कैसी है? एलिमेंट्री प्रोसेस। तो उसमें मोल नंबर ही पावर में जाएगा। मोल नंबर मतलब मोलेकुलरिटी ही पावर में जाएगी। तो उसके लिए ऑर्डर और मोलेकुलरिटी दोनों सेम होते हैं। चलो इसका एग्जांपल मैं वापिस समझ में आया इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप भी लिख सकते हो। लिखेंगे बच्चों, H2 plus I2 रिवर्सिबली गिव्स 2HI। तो इसमें मोलेकुलरिटी वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन नंबर ऑफ मोलेक्यूल गिने तो H2 का 1 I2 का 1, तो जवाब 2 आया, आंसर इज 2। लेकिन अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो उसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बताया था। रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 raised to 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 raised to 1, बाजू वालों ऊपर जाए। दैट मीन्स टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा? 1 plus 1 is equal to 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 plus 1 2 है, मोलेकुलरिटी भी 1 plus 1 2 है। इसका मतलब ये हुआ फॉर एलिमेंट्री प्रोसेस molecularity becomes equal to the overall order of the reaction. ओके, ये सेंटेंस आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ये लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट निकाल के, दैट इज एलिमेंट्री रिएक्शन। ओके, नाउ वी विल थिंक अबाउट कॉम्प्लेक्स। व्हेन अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन गिव्स अस द प्रोडक्ट, द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। When a sequence of elementary reaction, जिसको हम मैकेनिज्म भी कहते हैं, gives us the product, the reaction is called complex reaction. जिस रिएक्शन में एक से ज्यादा स्टेप्स हो उसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। अगर अच्छी तरह से इससे भी अच्छा लिखना है तो लिख सकते हो, the reaction in which more than one steps are present in mechanism, it is known as complex reaction. Okay, the complex reactions involving more than 3 molecules in the stoichiometric equation must take place in more than one step. Okay, the complex reaction involving more than 3 molecules in a stoichiometric equation must take place in more than one step. जिस केमिकल रिएक्शन में 3 या उससे ज्यादा, बराबर 3 से ज्यादा मोलेक्यूल्स होते हैं, जनरली उनकी रिएक्शन में एक से ज्यादा स्टेप होते हैं। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप। ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप। मैंने बताया था कि स्लो स्टेप इज ऑलवेज RDS, जिसको कहते थे रेट डिटरमिनेंट स्टेप, and the molecularity of slowest step is same of the order of overall reaction. उस रिएक्शन की मोलेकुलरिटी ही ओवरऑल रिएक्शन का रेट होती है, बराबर। इसको भी मैंने आपको
एग्जाम्पल देके समझाया था, लेकिन फिर भी हम ध्यान रखते हैं और एक बार फिर से समझते हैं। देखो ये रिएक्शन में लिख रहा हूँ, ये स्टेटमेंट समझना जरूरी है। H2 plus Br2 it gives 2HBr। ओके, इस रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप था Br2 का होमोलिटिक फिशन जो फास्ट है बनाता है Br डॉट प्लस Br डॉट, बराबर। उसमें से 1 Br डॉट ने रिएक्शन की, मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। 1 Br डॉट ने रिएक्शन की H2 से, उसने बनाया HBr प्लस H डॉट, तो दिस इज द स्लो रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है? स्लो रिएक्शन। तो Br डॉट प्लस H2 इट गिव्स HBr प्लस H डॉट, समझ में आया? अब बचा हुआ H डॉट और Br डॉट, बचा हुआ H डॉट और Br डॉट क्या बनाएगा? HBr। ये वेरी फास्ट रिएक्शन हुई क्योंकि फ्री रेडिकल की है। अब देखो एक से ज्यादा स्टेप है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गई, उसमें स्लो स्टेप रेट डिटर्मिनेंट होता है, तो ये स्टेप रेट डिटर्मिनेंट हुआ। इसके हिसाब से मैं ऐसा लिख सकता हूं कि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन ओनली डिपेंड्स ऑन आरडीएस, बराबर। आपको पता है ना, स्लो स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटर्मिनेंट स्टेप। तो रेट इज इक्वल टू बच्चों के into concentration of H2 into concentration of Br2 raised to 1/2, क्योंकि यहाँ पे Br डॉट लिखा है मतलब ओनली वन एटम। अच्छा, रिएक्शन में तो बच्चों आप देख सकते हो Br2 है मतलब 2 एटम वाला, तो आधा Br2 लिख सकते हैं। और स्टेटमेंट समझिए क्या लिखा है। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप। हमने क्या किया, यहाँ पे ऑर्डर लिखना हो तो ऑर्डर आएगा H2 के हिसाब से 1, Br2 के हिसाब से 0.5, सो 1.5 आया ना। So order can be obtained from slow step, slowest step, rate determinant step, and that is same with the order of overall reaction. Okay, molecularity of the slowest step, ये slowest step कौन सा था? सेकंड था ना। उसकी मोलेकुलरिटी क्या हुई? क्योंकि हाइड्रोजन गैस का पूरा मोलेक्यूल और Br2 का आधा मोलेक्यूल, बराबर। इसलिए लिखा है मोलेकुलरिटी डेढ़ होगी ना, 1 मोल प्लस आधा मोल। तो मोलेकुलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज द सेम विद द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। समझना जरूरी है कि ये लोग क्या कह रहे हैं, बराबर। दोनों का मीनिंग समझो। फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप, वही ऑर्डर देगा, एंड द मोलेकुलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज सेम विद द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। पूरी की पूरी ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर होगा 1.5 मतलब 1.5। कोई ताकात आपको नहीं समझ में आए, मतलब it is very easy to understand by this brief example. Take a screenshot or write down in your textbook. Okay, examples दिए हैं। The oxidation of ethane to carbon dioxide and water passes through a series of intermediate steps in which alcohol, aldehyde and acid are formed. ओके, अगर इथेन का ऑक्सीडेशन करोगे, ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, तो सबसे पहले उसमें से अल्कोहल बनेगा, चैप्टर नंबर 11 में आता है। फिर एल्डिहाइड बनेगा, फिर एसिड बनेगा। ओके, तो इतने डिफरेंट स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है और इसीलिए उसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहा जाता है। द रिवर्स रिएक्शन एंड साइड रिएक्शन, the reverse reaction and the side reaction, just like nitration of phenol, yield orthonitrophenol and paranitrophenol. Reverse reaction and side reaction, as example, nitration of phenol gives orthonitrophenol and paranitrophenol. तो ये सभी जो कैसी रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। मैंने दिया ना वो दोनों बेस्ट एग्जांपल लिख लो। ओके, एलिमेंट्री का लिखना है H2 plus I2 gives 2HI। ओके,
और कॉम्प्लेक्स लिखना हो तो वो 3 स्टेप वाली H2 plus Br2 gives 2HBr लिख के समझा सकते हो, या फिर ये रिएक्शंस आप लिख लो। रिवर्स रिएक्शन का मतलब है बच्चों, कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड के साथ साथ रिवर्स में भी होती है। साइड रिएक्शन का मतलब है कि कभी कभार मेन प्रोडक्ट के साथ साथ बाय प्रोडक्ट भी ज्यादा मिलती है, तो उसे साइड रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स दो टाइप की रिएक्शंस होती है, फर्स्ट इज एलिमेंट्री प्रोसेस एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ओके, चलो, राइट जनरल रिएक्शन एंड डिराइव द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के का यूनिट डिसाइड करना है। बेस्ड ऑन राइट द रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। आपको रेट कांस्टेंट का यूनिट भी लिखना है। ओके, तो ऑर्डिनरी रिएक्शन का यूज करके आप रेट कांस्टेंट, उसका डायमेंशन डिसाइड करो, उसका यूनिट लिखो, और साथ में जीरोथ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन भी लिखना है। तो बच्चों जनरल रिएक्शन तो लास्ट ईयर से लेके घूम रहे, कौन सी? स्मॉल ए मोल्स ऑफ ए प्लस स्मॉल बी मोल्स ऑफ कैपिटल बी gives small c moles of capital C and small d moles of capital D. So the differential rate expression of general reaction is as under. Differential rate expression. बच्चों इस कॉमन रिएक्शन का रेट एक्सप्रेस करना हो तो हम लिखते हैं रेट इज इक्वल टू माइनस dr by dt इज इक्वल टू k into concentration of a raised to x into concentration of b raised to y. ओके, चलो एक काम करते हैं, आपको डायमेंशन ऑफ k फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, k को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाते हैं। k को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओगे तो बनेगा रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a raised to x into concentration of b raised to y, जहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा x प्लस वाई, जिसको हम सोचेंगे n। n वैल्यू हो सकती है 0 से लेके इंटीजर, नॉन इंटीजर टू इंफिनिटिव, बराबर। तो पॉजिटिव, इंटीजर, नॉन इंटीजर विथ 0, ये ऑर्डर हो सकता है, बराबर। अब हम एक काम करते हैं बच्चों, अब देखो रेट का कोई भी फॉर्मूला होगा, रेट का कोई भी फॉर्मूला होगा, उसमें क्या लिखते हैं, माइनस या फिर प्लस कंसंट्रेशन बाय टाइम, ऐसा लिखते हैं। रिएजेंट हो तो माइनस, प्रोडक्ट हो तो प्लस, लेकिन यूनिट क्या होगा, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम ही होगा। ओके, तो यहां लिखा है यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन इज मोल लीटर इनवर्स एंड टाइम सेकंड इनवर्स विच इज यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन पर टाइम। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो n है, यूनिट ऑफ n इज मोल लीटर इनवर्स रेज टू n, बराबर। यूनिट ऑफ n इज मोल लीटर इनवर्स रेज टू n। सिंपल लॉजिक में आपको समझाऊं ना, तो पहले मैं यहाँ पे देखो रेट की यूनिट लिख रहा हूँ, रेट होगा कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होगा। ओके, अच्छा, नीचे आएगा कंसंट्रेशन रेज टू x इंटू कंसंट्रेशन रेज टू y। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, कंसंट्रेशन रेज टू x प्लस y लिख दीजिएगा, क्योंकि टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा x प्लस y। ठीक है, चलो, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है बच्चों मोल पर लीटर, इसलिए यहां लिखा है कंसंट्रेशन की जगह पे मोल पर लीटर। टाइम का यूनिट लिख सकते हैं हम टाइम या फिर सेकंड इनवर्स। अच्छा, x प्लस वाई को हमने n सपोज किया है, तो मोल लीटर इनवर्स रेज टू n आएगा, मोल लीटर इनवर्स रेज टू n। तो k का यूनिट डिसाइड करना हो तो देखो मोल लीटर इनवर्स रेज टू 1 है, मोल लीटर इनवर्स रेज टू n है, तो यहाँ आएगा मोल लीटर इनवर्स रेज टू 1 माइनस n अपॉन, नीचे टाइम है मतलब सेकंड आएगा, तो लिख सकते हैं मोल
liter inverse whole raised to 1 minus n second inverse. Okay, mole liter inverse raised to 1 minus n second inverse. Understood? इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, concentration raised to 1 minus n time inverse, बराबर, C for concentration, T for time. या फिर ऐसा भी लिखते हैं मोलर रेज टू 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स, क्योंकि कैपिटल एम उसको मोलर बोलते हैं, मोल पर लीटर. ओके, तो ये बहुत सिंपल सा डायमेंशन डिराइव करने का मेथड है जो फिजिक्स में, मैथ्स में सभी में आपने यूज किया होगा. तो अगर इसी क्वेश्चन को और सिंपलेस्ट मेथड से लिखना है तो आप ऐसा कर लो बच्चों. आप सपोज कर लो कॉन्सेंट्रेशन जो है उसका यूनिट होगा मोल पर लीटर, जिसको हम कैपिटल एम मोलर कहते हैं. ओके, कैपिटल सी. तो सीधा फॉर्मूला लिखता हूं, K इज इक्वल टू रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू x इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू y. यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अच्छा रहेगा आपका. रेट जो है ना वो होता है बच्चों मोलर अपॉन टाइम. कोई भी रेट ले लो, उसका फॉर्मूला लेते थे माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, ये जनरल फॉर्मूला होगा. E रेज टू एक्स बी रेज टू वाई है तो C रेज टू एक्स इंटू सी रेज टू वाई, तो लिख सकते हैं C अपॉन टी इंटू सी रेज टू एक्स प्लस वाई. अब आप जानते हो कि भैया ये जो C है, C वैसे ही रखो, अपॉन T मतलब टाइम इंटू C रेज टू n, ऐसा लिख सकते हैं x प्लस वाई को टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिया जिसको लिखेंगे n. तो आप देख सकते हो C रेज टू 1 अपॉन C रेज टू n, 1 माइनस n अपॉन T आएगा. तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला आता है कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 1 माइनस n टाइम इनवर्स. दिस इज डायमेंशन ऑफ K. फिर आप लिख दो भाई, C की जगह पे मोलर लिखो या मोल पर लीटर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर. तो ये जो मेथड है वो है हाउ कैन वी डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट, जहां पे n होगा टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, बराबर. सो स्टूडेंट्स अपनी टेक्स्ट बुक मेथड से जाओगे तो भी अच्छा है. फिर कॉमनली C फॉर कंसंट्रेशन लेके लास्ट तक जाओ, फिर लिख दो कि कंसंट्रेशन की जगह पे लेंगे हम मोलर, टाइम की जगह पे लेंगे सेकेंड, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा. ओके, तो नींद में भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? कंसंट्रेशन रेज टू 1 माइनस n सेकंड इनवर्स या टाइम इनवर्स. फिर पूछा था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है उसके लिए डायमेंशन क्या होगा. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपको n0 लेना है और कुछ नहीं है. तो देखो आप मोल लीटर इनवर्स रेज टू 1 माइनस 0 सेकंड इनवर्स, तो वही आएगा ना, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स. ओके, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो मोल लीटर इनवर्स रेज टू 1 माइनस 1 सेकंड इनवर्स, तो मोलर रेज टू 0 हो गया, ओनली बचा क्या, सेकंड इनवर्स. सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो मोल लीटर इनवर्स रेज टू 1 माइनस 2 सेकंड इनवर्स, तो आया मोल लीटर इनवर्स का इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स. मोल लीटर इनवर्स का इनवर्स इंटू सेकंड, अब मोल मल्टीप्लाई कर दो ना, मोल रेज टू माइनस 1, लीटर रेज टू माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 सेकंड इनवर्स. अरे कोई भी पूछे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो तो मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 3 सेकंड इनवर्स, तो आएगा मोल लीटर इनवर्स रेज टू माइनस 2 सेकंड इनवर्स, तो मोल रेज टू माइनस 2 लीटर स्क्वायर इंटू सेकंड इनवर्स, बराबर. तो ये हुआ बच्चों ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन.